In today's period, we are going to revise our two sentences. One is past perfect tense and another is past perfect continuous tense. The first one is a past perfect tense. Which one? Past perfect tense. Past perfect tense. This tense says about completion in the past. The starting is also in the past and the completion of that duration is also in the past. The whole duration is completed in the past. That's why we use a past perfect tense. Another one is a past perfect continuous tense. In that tense, whatever the action started in the past, but it still continue at the point of time we are talking about. Both the situation are slightly different. In past perfect tense, the condition started in the past and also finished in the past. Now we are in the present. The story already completed in the past. Whatever the action already complete in the past. The next one is the past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense. In this, the action started in the past and is also going on at the point of time. Just be whatever the time we are talking about, at that time the action is still going in the past. The difference in the tense is structure of this tense is a subject plus had plus verbs. Third form means also we can also call this past participle. And here is a subject plus had been VING. This is we also call it as a V4 or present participle. On this, we already take some examples. Just give me the answer of these sentences. The first one is we fill in the blank. There since birth. What is the answer? Had been living. Second one, I fill in the blank to travel by sea. What is the answer? I wish we fill in the blank before it started raining. Next one, when I saw you, I realized that we fill in the blank before. Mother told me that you fill in the blank. This is for a long time. He fill in the blank this house for 2 years before he moved to London. What is the answer? Had left before he moved to London. Okay. Now our grammar part is completed, and as per our syllabus we have to complete the 6th poem. The name of this poem is To the Skies and the Beyond. We will go for half of the poem today and half of the poem we will take it on tomorrow. What does a young excited passenger feel and see on her his first flight? एक यंग लड़का है जो अपने पैसेंजर यानी कि फ्लाइट में पहली बार पैसेंजर के तौर पे फ्लाई कर रहा है, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है? व्हाट इज द एक्सपीरियंस इफ समबडी लाइक यू फ्लाई फर्स्ट टाइम? रीड दिस इंटरेस्टिंग पोएम अबाउट द थॉट दैट रन थ्रू द स्पीकर्स नर्वस एट एंक्शियस माइंड. अब ये पोएम हम आराम से पढ़ेंगे और इसमें स्पीकर कैसे एंक्शियसली आपको ये बातें बताता है कि फर्स्ट टाइम फ्लाई करने के तौर पे किस प्रकार का अनुभव होता है, कैसे आपका एक्सपीरियंस, व्हाट इज द एक्सपीरियंस व्हेन द स्पीकर टाइम और फर्स्ट टाइम फ्लाइंग. यस आई विल रीच द स्काईज, आई एम गोइंग टू फ्लाई. मैं स्काई में चला जाऊंगा. कहाँ पे चला जाऊंगा? स्काई में चला जाऊंगा. I am going to fly. मैं कहाँ पे जा रहा हूँ? उड़ने के लिए. I will watch the earth from the bird's eye on high. और बर्ड यानी कि पंछी के आँखों के जैसा मैं ऊपर से किसको देखूंगा? धरती को देखूंगा. I will watch the earth. अर्थ मतलब क्या? धरती. बर्ड्स की आय, आपने चील की आंखें तो सुनी होगी. चील की आंखें कैसी होती है?
वैसे ही आपकी भी आंखें कैसी रहेंगी, और ऊपर से किस चीज को देखोगे आप, अर्थ को देखोगे। अप एंड अवे इन अ एयरप्लेन आई विल गो, ऊपर जाऊंगा और बहुत दूर जाऊंगा, अप एंड अवे। ऑन एन एडवेंचर टू सोर एंड एक्सप्लोर, ऑन एन एडवेंचर एक नई चीज ढूंढने के लिए जाऊंगा और मैं काफी ऊपर जाऊंगा, और नए एक्सप्लोर करने। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सप्लोर? एक्सप्लोर मीन्स टू फाइंड न्यू थिंग्स, नई चीजों को क्या करना है, ढूंढना है, एक्सप्लोर करना है, एडवेंचरस चीजों को आपको एक्सप्लोर करना है। एज आई बोर्ड द प्लेन, एज आई बोर्ड द प्लेन माई हार्ट स्किप अ बीट, मैं जैसे ही वो प्लेन पर चला गया वैसे ही मेरा हार्ट बीट करने लगा। क्या करने लगा? बीट। आपको भी लगता ही है ना, अगर आप फर्स्ट फ्लाई लेने जा रहे हो, ये उड़ेगा कि नहीं? उड़ेगा तो कहाँ तक उड़ेगा, उड़ेगा तो कहाँ तक उड़ेगा, लगता है कि नहीं डर? जैसे आप फर्स्ट टाइम साइकिल चलाते हो, डायरेक्ट चलाते हो या किसी का सपोर्ट लेके? सपोर्ट लेके। वैसे ही ये फर्स्ट टाइम फ्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब इनकी हार्ट बीट कैसे हो रही है? स्किप हो रही, मतलब एक आधी मिस भी हो रही है, धक धक स्टॉप, धक 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 स्किप भी हो रही है। अमिड ग्रेट एक्साइटमेंट अंटिल आई फाइंड माई सीट, और मैं काफ़ी एक्साइटमेंट में उस तौर पर था और मुझे आखिरकार मेरी सीट मिल गई। जब तक मेरी सीट नहीं मिलती मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट चली थी। आगे, इनटू द क्लाउड एंड बियॉन्ड आई एम अप एंड अवे, मैं क्लाउड में चला गया, अप एंड अवे ऊपर और काफ़ी दूर, ऊपर और काफ़ी दूर। बिडिंग फेयरवेल टू अ लोनली रन अवे, अब फेयरवेल दे रहा हूँ। फेयरवेल देना मतलब जब आप 12th पास आउट हो जाओगे चिंतामणि इंस्टीट्यूट से, तब आपको क्या दी जाएगी इंस्टीट्यूट की तरफ से? फेयरवेल, यानी कि आपका जो पुराना सब साथी है, सफ़र है, हमारे साथ जो भी आपने बिताया है, उसके तौर पे हम आपको क्या देते हैं? फेयरवेल। वैसे ही प्लेन जो है वो पहले कहाँ से चलता है? जमीन, जमीन उसको क्या बोलते हैं? रनवे। कहाँ से चलता है? रनवे। बाद में रनवे से टेक ऑफ करके स्काई में। अब वो स्काई में जाते समय रनवे को क्या कर रहा है? फेयरवेल दे रहा है। क्या दे रहा है? फेयरवेल दे रहा है। द प्लेन विंग्स हायर टू फील्ड ऑफ स्टार्क व्हाइट, अब वो जो प्लेन के विंग्स है वो हायर यानी कि ऊपर चले गए। टू फील्ड ऑफ स्टार्क व्हाइट, टू फील्ड ऑफ स्टार्क व्हाइट, अब वो कंप्लीटली व्हाइट, आजू बाजू सब स्काई में क्या रहेगा? कंप्लीटली व्हाइट रहेगा। रहेगा कि नहीं? अब इनको भी वही दिखाई दे रहा है। दैट आर बाथ इन ग्लिटर एंड गोल्डन सनलाइट, अब वो बाथ इन लिटर मतलब चमचमाती वहाँ पे सनलाइट की रेज है। ऊपर क्या रहेंगी? किसकी चमचमाती हुई रेज रहेगी? सनलाइट की। गोल्डन सनलाइट, सुनहरा सनलाइट। हायर एंड हायर अंटिल ऑल आई कैन सी, हायर और हायर, जब तक मैं उसे देख पाता हूँ। ऊपर और ही सनलाइट थे और ही ग्लिटरिंग स्टेजेस थी। आर क्लाउडर वेविंग एट मी इन अ हेवनली सी, और वहाँ पे क्लाउड्स भी थे। क्या थे वहाँ पे? क्लाउड्स, और काफ़ी हिवनली यानी कि काफ़ी बड़ा, ऊपर से आपको धरती से भी ज़्यादा आपको सी ही दिखाई देगा, क्योंकि धरती पर ज़्यादा परसेंटेज में क्या है? पानी। तो ऊपर से क्या दिखाई देगा? पानी। क्या दिखाई देगा? वाटर दिखाई देगा। तो हिवनली सी ऊपर से दिखाई दिया। तो यही अपनी पोएम है। जैसे ही आपका अनुभव लोगे वही उसी प्रकार का अनुभव इन्होंने शेयर किया है ऑलरेडी, तो आपको ऑटोमेटिक उनके अनुभव से आपका जो भी ज़िंदगी में पहला सफ़र रहेगा, दैट द सेम एक्सपीरियंस टॉट बाय दिस पोएम, द नेम ऑफ द पोएम टू द स्काइज एंड बियॉन्ड।
पोएम का नाम क्या है? एंड बियॉन्ड।